I am Ajit Agrawal. Welcome to the Agrawal classes. Today we will study the steady flow energy equation, that is the first law of thermodynamics applied to open system. In this, we assume we have a control volume This is the control volume we have. In this is the section 1 the inlet point, and this is the section 2 exit point. At 1 point we have the pressure P1, volume V1, specific volume V1, specific internal energy U1, the height of the inlet point is Z1 from the arbitrary datum, initial velocity C1 is C1, and mass flow rate is M1 dot at the inlet point. And at the exit point we have pressure P2, specific volume V2, specific internal energy U2, and Z2 is the height from the arbitrary datum, and C2 is the velocity, and M2 dot is the mass flow rate. So this we have control volume, and this is the open system. The fluid is entering with the rate of M1 dot, and fluid is going out with the M2 dot. So this is an open system. We'll apply the first law of thermodynamics. So in this case, when we are considering the steady flow, the steady flow means the property at some point, say at this point, will not change with respect to time. The property at this point will not change with respect to time. Property at this point will not change with respect to time. But these properties may be different. Say this is P3, this is P4, this is P5. The properties are different, but the value of the property at that particular location will not change. So what we will do, we'll make an energy balance. The first law of thermodynamics says that energy cannot be created and cannot be destroyed. तो हम क्या करेंगे कि हम एक एनर्जी बैलेंस बनाएंगे. सो एट द इनलेट what is the energy we are supplying, and at the exit what is the energy the system is leaving. And in this particular case, let us assume that we are supplying some Q amount of heat, say joules per second. We are supplying this amount of heat to the system, and from the system we are getting W amount of work per second. So this Q supplied we are taking as positive, and W supplied from the system or by the system we take as positive. So we'll make the energy balance. To make this energy balance, we'll write down the equation. Say here we'll write, let us start. At the inlet, M1 dot of mass is flowing, and for 1 kg the flow work entering is equals to P1 V1. The internal energy entering with the fluid is U1, and G into Z1 is the potential energy which is entering into the system, plus 1 by 2 V square, rather C1 square, is the kinetic energy which is entering into the fluid. So this much is the amount of energy entering with M1 dot kg per second with the fluid. Plus we are supplying Q amount of heat per second, and that is equals to the amount which is going out from the system. It is equals to, say, M2 dot multiplied by P2 V2 plus U2 plus GZ2
plus 1 by 2 C2 square. That is the amount of energy going out with 1 kg of mass, and m2 dot is the mass flow rate at the exit point, so multiplying by this, so this is the amount of energy going out through section 2 plus we are getting some W amount of work, joules per second. So this is the energy balance, and this is known as the steady flow energy equation. Now only we are going to rewrite it by different ways in the different applications. So we'll rearrange the terms as m1 dot p1 u1 v1 plus u1 we can write as h1 is specific enthalpy plus gz1 plus 1 by 2 c1 square plus q equals to m2 dot h2 p2 v2 plus u2 we can write as h2 plus gz2 plus 1 by 2 c2 square plus w. So this is the energy flow equation, and as we are considering the steady flow, then the mass flow rate will remain constant. So we can write this as m1 dot equals to m2 dot, so it will become m dot into this plus q equals to m dot into this plus w. This is the energy equation we are writing in terms of joules per second. Joules per second. Now if we wish to write this equation in terms of joules per kg, then what to do? We'll divide this total equation by mass flow rate, then it will become that is joules per second divided by kg per second, so it will become joules per kg. So we'll divide this by m, so it will become h1 plus gz1 plus 1 by 2 c1 square plus q by m we write as q, small q, that is joules per kg equals to h2 plus gz2 plus 1 by 2 c2 square plus w, again we write as a small w, so it is joules per kg, that is w is equals to w by mass flow rate, and q is equals to q divided by mass flow rate, where w is joules per second, q is joules per second. So small w and small q will become joules per kg. So this is the energy flow equation which we are using on the basis of joules per kg. So this is only the first law of thermodynamics applied to the steady flow process. Now we will consider some of the examples to utilize this equation. The steady flow energy equation, this is in a form of joules per second, and this is in a form of joules per kg. This equation is utilized in number of places like pipeline flow, heat transfer process, mechanical power generation in engines and turbines, combustion process, and flow through nozzles and diffusers. So we'll consider most of the examples. So first let us consider the example of nozzle and diffuser. Nozzle and diffuser. Nozzle and diffuser. What is nozzle? Nozzle is basically converting pressure energy or heat energy into a kinetic energy. That is, it is a device, एक डिवाइस है जिससे कि हम प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट डिवाइस इज नोन एज नोजल. नोजल का जनरल जो शेप है
हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ये नोजल है, दिस इज द इनलेट पॉइंट, एंट्री, and this is the exit. So in this case this will be our system, and we will be considering the inlet point and the exit point. Okay, so to calculate this, apply this one, we'll use this equation. Say starting m dot is, and we are studying in the steady state, that is a steady flow energy equation. So at the inlet point it is m dot, and here if you see from the datum, this nozzle is as such placed horizontally, but even the height of the nozzle is small, or the length is small, so we can say Z1 is equals to Z2, we can assume. So here Z1 we will neglect, so m dot P1 V1 plus U1 plus GZ1 we are eliminating, plus 1 by 2 C1 square, and this nozzle is not transferring any heat out from the surface, or not taking heat from the surface. Okay, so the amount Q is also 0, is equals to m dot P2 V2 plus U2 plus GZ2 we are neglecting, so 1 by 2 C2 square plus W. There is no part moving in the nozzle, so W is also 0. So this becomes our steady flow energy equation. M dot we can cancel. P1 V1 we can write as H1 plus 1 by 2 C1 square equals to P2 V2 plus U2 we can write as H2 plus 1 by 2 C2 square. And we are interested to find out the velocity, because this nozzle is used to increase the velocity by the cost of enthalpy in this particular case. So 1 by 2 C2 square is equals to H1 minus H2 minus 1 by plus 1 by 2 C1 square. And if we assume the initial velocity is comparatively very low as compared with C2, the exit velocity, then we can neglect this also. So C2 square will become 2 H1 minus H2, or C2 will become square root of 2 H1 minus H2. That is the enthalpy at inlet point minus enthalpy at exit point. And if we don't wish to neglect it, then we have to add C1 square here. So you'll get this as the equation to find out the exit velocity from the nozzle. In this case, you have to remember, you have to write the H1 and H2 in terms of joules per kg only, joules per kg, because we are writing a small h, so it is joules per kg. It should not be kilojoules. And here the C1 must be in meter per second. Then you will get the velocity at the exit of the nozzle as meter per second. So this is the nozzle, and in case of diffuser, it is just reverse of that. Here we are having an increasing area. The flow starts from this end and it leaves at this end. So in this case, what happens? The kinetic energy is converted into potential energy, or kinetic energy is converted into heat energy. So if we'll apply this equation as assuming this as 0.1 and this is 0.2, and simply substituting, we'll get the same result. C2 is equals to this one. So okay, in this case what will happen? The value of H2 will be more as compared with H1. So it will be C1 square. It will be remain same, but this figure will come out to be a negative one. So the velocity at the exit will be lower. This diffuser where we are using, हमारे जैसे घर में जो पंप लगा हुआ है उसमें क्या होता है, पानी जब आता है तो वो उस इम्पेलर पे टकराता है, और इम्पेलर जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो पानी को दे देता है. पानी को वो क्या देता है? काइनेटिक एनर्जी. पानी तेजी से फ्लो होने लगता है. फिर उसमें एक डिफ्यूजर लगा होता है जो
कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाता है, तो इस डिफ्यूजर में से जब पानी निकलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या उसकी वेलोसिटी कम होती है और उसकी प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजर। ये हम लोग अपने हाइड्रोलिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो हमको टरबाइन में हर जगह पर दिखाई देगा, टरबाइन के एग्जिट पर, और यहाँ इस कई जगह पर हम लोग इसका यूज करेंगे। सो दैट इज डिफ्यूजर। नोजल जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज करने के काम आता है और डिफ्यूजर जो है वेलोसिटी को डिक्रीज करने के काम आता है। सो दिस विल बी द इक्वेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लेते हैं थ्रॉटलिंग डिवाइस। थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या होती है कि जब भी हम किसी फ्लो को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया से पास करते हैं, जैसे हमारा नल है, नल को हम थोड़ा सा ओपन करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है, लेकिन जब हम नल को पूरा ओपन करते हैं तो प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होता है। तो वो डिवाइसेस जहां पर हम लोग प्रेशर को ड्रॉप करते हैं बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जहां से वो फ्लो हो रहा है उस फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बहुत थोड़ा सा अलाउड करते हैं, तो इस तरह से जब दूसरी तरफ फ्लो जाता है तो उसका प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। सो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जो है, जैसे एक वॉल ले लेते हैं हम, ये एक वॉल है, ऐसा वॉल ले लिया हमने, इसमें से फ्लो हो रहा है और यहां पर हमको एक डिवाइस लगा देते हैं जो कि इस वाटर को या स्टीम को पास नहीं होने देगी, बहुत थोड़ा सा अलाउड करेगी पास होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस। इसमें कोई भी चीज चल नहीं रही है, यहाँ से एक तरफ से फ्लो इन हो रहा है और यहाँ से एक तरफ से फ्लो आउट हो रहा है। यहाँ प्रेशर हाई है, यहाँ प्रेशर लो है। ठीक है, कोई भी चीज मूविंग नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को अगर लगाएंगे m डॉट, तो ये 0.1 और ये 0.2। ठीक है, पहले हम जूल्स पर सेकेंड वाले को लगा लेते हैं। तो m डॉट इनिशियल प्रेशर P1 V और वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम V1, इंटरनल एनर्जी U1, तो इसको हम लिख लेते हैं H1 प्लस, अगेन यहाँ पर जो प्रेशर थ्रॉटलिंग डिवाइस है वो बहुत छोटी सी होती है, तो Z1 और Z2 ऑलमोस्ट सेम होते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रखें हम चाहे वो वर्टिकल रखें, कंपेरेटिवली उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो हम GZ1 को कैंसिल कर देते हैं GZ2 से, प्लस C1 स्क्वायर, जो फ्लो की वेलोसिटी है वो भी कंपेरेटिवली बहुत कम होती है, तो हम उसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या कि हम लिख लेते हैं एक बार 1/2 C1 स्क्वायर प्लस Q। इसमें से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना अंदर जा रहा है और ना यहां से बाहर जा रहा है। सो इट इज 0 इज इक्वल्स टू m डॉट P2V2 प्लस U2 कैन बी रिटर्न एज H2 प्लस GZ2 को हम GZ1 के साथ कैंसिल कर चुके हैं, सो 1/2 C2 स्क्वायर प्लस W इज 0, क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट मूव नहीं हो रहा है, देयर इज नथिंग टू मूव। सो m डॉट कैंसिल हो गया। इफ वी अज्यूम दैट द वेलोसिटी एट द इनलेट एंड वेलोसिटी एट द एग्जिट आर approximately same, then we can eliminate that also, or we can cancel out that 2 also, then it will become H1 and equals to H2. That is, in the throttling process or in the throttling device, the enthalpy, that is P1 V1 plus U1, is equal to the enthalpy at the exit point, that is equals to P2 V2 plus U2. Okay, so in this case, either you use this equation or this equation, it is the same thing, because m dot is cancelling out, there is no Q and there is no W. Okay, if at all is there, then we will consider, say in this case, if it is given from the throttling wall, the heat transfer is there, Q joules per second, then we will add here, say Q joules per second. So in that case, when we'll eliminate this m, then here it will become small q joules per kg. So we'll write that way. Okay, so this is the second application of the steady flow energy equation. Next application of the steady flow energy equation, we'll consider turbine and compressor. What is turbine? Turbine is basically an work output giving device
if we are considering the steam turbine, then what we are doing, हम उसमें स्टीम को देते हैं हाई प्रेशर पर और वो स्टीम से हमको वर्क मिलता है और लो प्रेशर पर, लो इंथैल्पी पर वो स्टीम जो है वो टरबाइन से बाहर निकलती है। तो ये हो गई टरबाइन। या अगर वाटर टरबाइन लेते हैं तो हम हाई प्रेशर का वाटर उसमें सप्लाई करते हैं और उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं और लो पोटेंशियल एनर्जी लेकर के वाटर बाहर निकलता है। या हाई काइनेटिक एनर्जी का वाटर को सप्लाई करते हैं और उससे काइनेटिक एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय मीन्स ऑफ टरबाइन। ठीक, तो बेसिकली टरबाइन जो है वो एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। यहाँ पर हम लोग चूंकि थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर लेंगे, हम उसको हीट एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट करेंगे हम वर्क में। सो टरबाइन के फिगर को हम कैसे बनाएंगे? टरबाइन का फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये टरबाइन हो गई, इसमें एक शाफ्ट रहेगी, इससे जो भी पावर मिलेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट करेंगे बाय अटैचिंग दिस शाफ्ट विद द अल्टरनेटर। यहां पर मान लीजिए ये हमारा इनलेट पॉइंट है जहां से हम स्टीम को सप्लाई कर रहे हैं और यहां से ये एग्जिट पॉइंट है जहां से हम स्टीम को एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन हम लगाते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि जनरली ये जो टरबाइन है ये इंसुलेटेड होती है, ये होती है सर्कुलर, ऐसी। यहां से आप देखेंगे तो सर्कुलर दिखाई देगी, यहां से देखेंगे तो सर्कुलर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये इसको चारों तरफ से हम इंसुलेट करते हैं जिससे कि इसमें हीट का जो रिजेक्शन है, हीट का जो लॉस है वो ना हो। कई जगह हम बोलते हैं हीट का लॉस और कई जगह हीट अंदर ना आए, क्योंकि जब टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट बाहर जाने की कोशिश करेगी, जब अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हीट अंदर आने की कोशिश करेगी। वो दोनों ही चीजों को हम अवॉइड करना चाहते हैं तो हम इसको इंसुलेट कर देते हैं। इंसुलेट किया तो हमने क्या बोल दिया कि Q जो है वो 0 हो गया, Q जो है नहीं रहेगा क्योंकि हमने इसको इंसुलेट कर दिया है। W यहाँ पर रहेगा क्योंकि W अमाउंट ऑफ वर्क हमको मिल रहा है, क्योंकि ये तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस ही है तो हमको W वर्क मिलना ही है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को लगाते हैं। m डॉट P1 V1 प्लस U1 को हम लिख देते हैं H1 प्लस, अगेन यहाँ पर वही दिख रहा है आपको कि ये शाफ्ट डेटम से दोनों का H1, Z1 और Z2 जो है वो सेम दिखता है। और अगर वर्टिकल भी कर देंगे तो उसकी हाइट के कारण जितना एनर्जी चेंज हो रहा है वो बहुत निग्लिजिबल है, तो हम Z1 इक्वल्स टू Z2 अज्यूम कर लेते हैं। सो P1 V1 प्लस U1 कैन बी रिटन एज H1 प्लस 1/2 C1 स्क्वायर in plus Q is 0, so it is eliminated. M dot P2 V2 plus U2 can be written as H2 plus GZ2 is cancelled with GZ1, 1/2 C2 square plus W. So this is the energy equation, and if you cancel, if you neglect the C1 and C2 also, then this equation will further reduce to m dot H1 equals to m dot H2 plus W, or if we divide it by m dot, then it will become H1 equals to H2 plus small w. This small w is nothing but a joules per kg. Whatever is the flow is there. If here we are calculating output per kg, and if it is given that m dot is 10 kg per second, then we'll multiply it by 10, so we'll get the total work output. Or we can write as W equals to H1 minus H2. So this is the output. Okay, and if the kinetic energy is there, then that will remain in that case. But whenever you are using H and C, the H must be in joules per kg. It should be, H should be in joules per kg. It should not be in kilojoules per kg. It should not be in joules
kilojoules per kg or megajoules per kg. It should be in basic unit joules per kg. So this is the application of the turbine. Now if we consider the compressor, compressor is reverse of this. compressor जो है बिल्कुल टरबाइन का उल्टा है. इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मोटर लगा देते हैं. ठीक, एक मोटर लगा देते हैं और इसमें हम वर्क ऑफ सप्लाई करते हैं. इसमें हम वर्क सप्लाई करते हैं. वर्क सप्लाई करने से क्या होता है, अब इसमें पॉइंट जो है वो इनलेट पॉइंट और एग्जिट पॉइंट चेंज हो गए. ये इनलेट पॉइंट हो गया और ये एग्जिट पॉइंट हो गया. ये एटमॉस्फेयर से एयर को लेगा या जिस भी फ्लूइड को हमको कंप्रेस करना है वो लेगा और इसको कंप्रेस करेगा, इसके प्रेशर को इंक्रीज करेगा और यहां से इसको सप्लाई कर देगा. अगेन कंप्रेसर के केस में भी हम यहां पर इंसुलेशन कर सकते हैं, लेकिन यहां जनरली हम लोग इंसुलेट नहीं करते हैं. उसकी जगह पर हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो और कूल करने के लिए सिस्टम लगाते हैं. यहां पर हम फिन्स लगा देते हैं. फिन्स जैसे आपके मोटरसाइकिल के इंजन के ऊपर ऐसे निकले होते हैं एल्यूमिनियम के सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं फिन्स. ये फिन्स क्या करती है, ये फिन्स जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है. पहले जो सरफेस एरिया था वो इतना ही था, तो इतने से ही हीट बाहर निकलेगी. लेकिन जब इसको हमने इस तरीके से कर दिया तो इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया. तो अब इससे ज्यादा हीट को जो है वो हम ट्रांसफर कर पाएंगे, क्योंकि यहां हमारे को हम चाहते हैं कि गैस को कंप्रेस करना, लेकिन हम साथ में ये भी चाहते हैं कि कम से कम पावर हमको लगे, जिससे कि हमारा बिजली का बिल कम आए. तो हम क्या करते हैं, गैस को कूल भी करना चाहते हैं. तो हम गैस को कूल कैसे कर सकते हैं कि उसमें से हीट को बाहर जाने दें. तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग फिन्स लगा देते हैं. तो ये होता है हमारा कंप्रेसर. तो कंप्रेसर के केस में हमने क्या देखा कि W जो है वो फाइनली आने वाला है निगेटिव में, क्योंकि हम उसको सप्लाई करने वाले हैं. और Q जो है हम यहाँ पर हीट लॉस कर रहे हैं. हीट को हम कंप्रेसर से बाहर छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं बाई फिन्स. सो Q जो है ये भी निगेटिव में आने वाला है, क्योंकि हमने बोला था कि जब सप्लाई करेंगे तो प्लस लेंगे और जब रिजेक्ट करेंगे तो निगेटिव लेंगे. वर्क में हमने बोला था कि जब हमको मिलेगा तो हम पॉजिटिव लेंगे और जब हम सप्लाई करेंगे तो निगेटिव लेंगे. बट ये तो रिजल्ट आएगा, उसको हम देखेंगे. हम अभी सिंपली सी एनर्जी इक्वेशन को यहाँ पर यूज करते हैं. तो एनर्जी इक्वेशन को यूज करने के लिए हम कंप्रेसर के लिए एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं. पहले जूल्स पर सेकेंड वाले को m डॉट kg ऑफ गैस या फ्लूइड अंदर जा रहा है, उसकी एंथैल्पी है H1, P1 V1 प्लस U1 H1 है, प्लस अगेन GZ1 को हम कैंसिल कर देते हैं विद GZ2 प्लस 1/2 C1 स्क्वायर W प्लस Q. ये हीट हम सप्लाई करेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये Q की वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी. तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कंप्रेसर जो है वो इतना अमाउंट से 100 किलो जूल्स पर सेकेंड रिजेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे Q की जगह पर -100 इंटू 10⁻³ क्योंकि मैं जब H और C दोनों हैं तो यहाँ पर सब चीजें जूल्स में आएंगी. तो ये 100 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही होगी. तो इस तरीके से हम लेंगे. अदरवाइज इक्वेशन में हम Q ही लिखेंगे. इक्वल्स टू एग्जिट पॉइंट पर लेंगे तो m डॉट H2 प्लस 1/2 C2 स्क्वायर प्लस W अगेन हम जब चला रहे होंगे इस कंप्रेसर को तो हमको मालूम होगा कि भाई 25 किलोवाट की मैंने मोटर लगाई है, माने 25 किलो जूल्स पर सेकेंड मैं इसमें सप्लाई कर रहा हूं. तो जब वैल्यू दी होगी तो मैं यहां पर लिखूंगा -25 इंटू 10⁻³ जूल्स पर सेकेंड. ओके, और अदरवाइज मैं लिखूंगा W. तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी. और अगर ये हमारी इक्वेशन हो गई, इसमें अगर हम फिर C1 और C2 को भी कैंसिल करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है तो हम उसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं. m डॉट H1 प्लस Q इक्वल्स टू m डॉट H2 प्लस W.
और अगर इसको हम जूल्स पर केजी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा H1 प्लस Q अपॉन खाली Q हो जाएगा, ये स्मॉल Q माने Q बाई M डॉट इक्वल्स टू H2 प्लस W स्मॉल W। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई कंप्रेसर के लिए। ठीक है, अगला एप्लीकेशन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का हम लेते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर बेसिकली क्या होता है, ये हीट को एक्सचेंज करने का काम करता है। मतलब एक पर्टिकुलर फ्लूइड है मेरे पास में जो बहुत गर्म है, और उसमें से हीट जो है मैं किसी दूसरे फ्लूइड को देना चाहता हूं जो कि फ्लूइड ठंडा है इसके कंपेरेटिवली, क्योंकि तभी एनर्जी हीट जो है या एनर्जी जो है वो फ्लो होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, और इस केस में जब हम हीट एक्सचेंजर की बात करते हैं तो जनरली हम सराउंडिंग वगैरह को छोड़ देते हैं कि जो वहां हीट लॉस वगैरह हो रहा है तो वो निग्लिजिबल है करके। ठीक, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि एक हीट एक्सचेंजर है, मान लीजिए एक फ्लूइड जो है वो यहां से आ रहा है टेम्परेचर T1 पर और यहां पर टेम्परेचर T2 पर जा रहा है। टेम्परेचर T1 भी मैं लिख लेता हूं 500 डिग्री सेल्सियस और यहां पर लिख लेता हूं 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये पूरी गैस जो है वो इसमें फ्लो होकर के यहां से निकल रही है। इसको भी ओपन कर देता हूं। चलिए, यहां से गैस आई और यहां से गैस निकली। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूं, बीच में एक कॉइल लगा देता हूं। इस कॉइल से कोई कोल्ड फ्लूइड गैस उसको मैं इसमें सप्लाई करता हूं, और मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, और जब ये इसमें से पास होकर के यहां निकलती है तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या हुआ कि ये जो 500 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्लूइड था, गैस थी या फ्लूइड लिक्विड था जो भी, वो अपनी हीट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ 100 तक है और यहाँ 500 है या यहाँ 200 है, तो हमेशा हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होगी। तो ये अपनी हीट जो है ये इस कॉइल को या इस कॉइल के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको दे देगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट को एक्सचेंज करने के लिए जिस इक्विपमेंट को हम यूज करेंगे वो हीट एक्सचेंजर। तो जब हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, एनर्जी बैलेंस हमको बस करना है। इसने जितनी हीट दी उसने इतनी हीट ली। तो अगर हम मान लें कि इसका मास फ्लो रेट m1 है और इसकी स्पेसिफिक हीट C है या C1 है, स्पेसिफिक हीट के लिए हमने अभी तक, चलिए हम Cp करके 1 कर देते हैं, और इस केस में इस फ्लूइड जो दूसरा फ्लूइड है उसका मास फ्लो रेट है m2 और इसका Cp जो है वो Cp2 है। यहाँ पर टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T3 और ये टेम्परेचर T4। ठीक है, तो इसने कितनी हीट दी, तो M1 Cp T1 माइनस T2, इतनी हीट M1 Cp T1 Cp1, इतनी हीट लेकर के वो आया था और यहां से इतनी हीट लेकर के निकला M1 Cp1 T2। ठीक, ये हीट किसको दी उसने, इस फ्लूइड को। तो इस फ्लूइड का फ्लो रेट कितना था, m2, इसकी स्पेसिफिक हीट थी Cp2 इनटू इसका इनलेट टेम्परेचर था T3 और एग्जिट टेम्परेचर था T4। सो T4 माइनस T3, कम हीट लेकर के आया था, ज्यादा हीट लेकर के जा रहा है। और इसमें वर्क डन जो है वो 0 है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। Q जो है वो यहां से कोई भी हीट लॉस जो है वो सिस्टम से नहीं हो रहा है। So this is the equation which we can utilize for the heat exchanger. So इस तरीके से इसके इतने सारे एप्लीकेशंस हैं और इन्हीं एप्लीकेशंस को हम लोग आगे भी फर्दर यूज करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कंसीडर करेंगे। थैंक यू।